welcome to the webinar. And I Thank welcome you so everyone. much. Let me introduce the guest speaker. Our guest speaker is Raheel Ahmed. He is the CEO and co-founder of DevNation. Basically, Sir Raheel Ahmed is on a mission to help Pakistani developers reach their full potential. He has extensive entrepreneurial and data science experience with two startups under his belt. Raheel's first startup, Amiltrons, operated in China and was acquired at the end of 2019. He then moved to the US and launched his second startup, ExplainX, an open source explainable AI platform. As of today, over 40,000 data scientists are using the library as part of their daily lives. Sir Raheel is also a visiting researcher scholar at NYU Tandon School of Engineering, focusing on making AI more trustworthy. Before starting this entrepreneurial career, he worked as an AI engineer at NVIDIA and as the head of marketing analytics at Jura Network. With a business degree and solid tech expertise, Raheel is a regular member of NYU entrepreneurial and research community. Today, Sir Raheel is gonna guide all the CSIT graduates or the students who are currently enrolled in these degrees about the necessary hard and soft skills needed to land a highly payable job and to be a master software engineer or an IT expert. So, sir, we are good to go. You may start the webinar. Thank you so much. Thank you so much for such a nice introduction. Assalamu alaikum, everyone. I'm very grateful for for getting the chance to speak with you all. और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस और जो अपना मैं विजडम है आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ. जो the reason why I'm here is extremely simple. I really want to tell you guys कि आप लोग सिलिकॉन वैली कैलिबर डेवलपर कैसे बन सकते हैं और अपने आप को कैसे you can set up for success to land a high paying job in technology. कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है, स्किल सेट की जो डिमांड है वो बहुत डाइवर्स है. तो अब हम अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करें, दैट इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थिंग. और उसी चीज के ऊपर मैं फोकस करूंगा आज. ठीक है. कोई भी आपको सवाल हो प्लीज लेट मी नो. ठीक है. आई विल बी हैप्पी टू stop and I'll be happy to engage with you guys in a conversation. सही है. चलिए शुरू करते हैं. तो a little bit background on myself. मेरा सिर्फ एक छोटा सा मिशन है which is basically to help Pakistani developers reach the level of a Silicon Valley developer. जो मेरा बैकग्राउंड है वो ओरिजिनली बिजनेस की साइड पर है और डेटा साइंस की साइड पर है और मैं ग्रेजुएट हुआ था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से. एंड प्रीवियसली आई वर्कड एट मल्टीपल स्टार्टअप्स. मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था वो जूरा नेटवर्क के साथ स्टार्ट हुआ था जिसमें आई वाज द मार्केटिंग एनालिटिक्स डायरेक्टर देयर. और जब मैं वहां पे था तो आई एक्चुअली हेल्प द टीम go from 0 people to team of 10 and we raised about $17 million in Series A funding. उसके बाद I actually joined NVIDIA as an AI engineer और मैंने वहाँ पे deep learning machine learning models के ऊपर काम किया. And then I actually founded my own startup, MLtrons, which was based in Shanghai in China, and that was acquired. उसके बाद actually I moved to the US, जहाँ पे मैं अभी currently based हूँ. In the US, I worked as an AI researcher at New York University. और वहाँ पर ही मैंने with my other co-founder Mudassir, we launched another startup which was basically ExplainX. And it's also a very cool open source library that is currently used by a lot of data scientists around the globe. मेरा मकसद पाकिस्तान के साथ करने का ये है कि क्योंकि I'm a Pakistani and Pakistan has a lot of potential. ठीक है. पाकिस्तान के पास बहुत सारा टेक टैलेंट है लेकिन when you go talk to the employers वहां पे आपको बहुत बड़ा एक गैप नजर आता है. ठीक है. जो कि बेसिकली स्किल का गैप है जो कि हार्ड स्किल भी और सॉफ्ट स्किल भी है. ठीक है. तो मेरा मकसद ये था कि यार we have to somehow find a way to actually bridge that gap and help our Pakistani engineers be a better mature version of themselves ताकि वो दुनिया के टेक टैलेंट के साथ compete कर सकें. तो there are basically 3 things that I'm going to talk about. ठीक है. कि जब आप पहली चीज before you start applying for a job, ठीक है, you really have to understand
द टेक लैंडस्केप। और जो कोविड है उसने हमें ये सिखाया है कि जो टेक लैंडस्केप है इन द लास्ट 1 ईयर 2 ईयर, वो बहुत ड्रामेटिकली चेंज करके है। ठीक है, जब लैंडस्केप चेंज करके आपकी स्ट्रेटजी भी चेंज कर जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज हम ये करेंगे कि देयर आर अ लॉट ऑफ रियली गुड डेवलपर्स इन पाकिस्तान, but the problem is कि why do a lot of developers settle for low paying jobs? ठीक है, हम ये सीखेंगे कि लो पेइंग जॉब वाला जो बंदा होता है और जो हाई पेइंग जॉब वाला बंदा होता है, ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और एट द एंड ऑफ द डे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ऑलराइट, सो व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं टू एक्चुअली इंक्रीज आवर लेवल, और हम उस लेवल पे पहुंचे जिस लेवल पे सिलिकॉन वैली के अंदर जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब पैंडेमिक नहीं था तब इट वाज ऑल अबाउट द लोकेशन। ठीक है, if you're based in New York, or if you're based in Shanghai, or if you're based in California, or if you want to work in a company in Silicon Valley, you had to be physically present there. ठीक है, सिमिलरली अगर आप लाहौर में काम करते हैं या आप कराची में काम करते हैं तो आपके लिए वही अपॉर्चुनिटीज ओपन है। ठीक है, जो आपके जियोग्राफिकल एरिया आपको अलाउ करता है। ये नहीं हो सकता कि पहले पाकिस्तान के अंदर के पहले आप अगर कराची की एक कंपनी है वो आपको रिमोटली हायर कर ले, दे वुड प्रेफर यू टू कम मूव टू कराची और आप कराची के अंदर जाके काम शाम करें। लेकिन इन द लास्ट ईयर जो हमारा टेक लैंडस्केप है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। इसका मतलब ये है कि असल में मोर देन 50% ऑफ द कंपनीज, जो टेक कंपनीज हैं, वो दे हैव डिसाइडेड टू स्टे रिमोट इवन आफ्टर कोविड। मतलब ये कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिमोट बंदे हायर करेंगी और रिमोटली काम करेंगी। इसका मतलब ये है कि घर से काम जो करने वाली जो कॉन्सेप्ट था, इट्स अ रियलिटी नाउ। ठीक है, तो अब टेक कंपनीज आर एक्टिवली हायरिंग इंजीनियर्स फ्रॉम मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज on a remotely basis, which means कि you have access to so many new job opportunities जो पहले आपके पास नहीं थी। पहले अगर आप किसी पाकिस्तान की टियर 2 टियर 3 सिटी के अंदर हैं, आप सोच भी नहीं सकते थे बाहर की किसी अच्छी कंपनी के साथ काम करना, अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक नेटवर्क ना हो या किसी को जानते ना हो। लेकिन अब ये चीज चेंज हो गई है। ठीक है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो ये है कि क्योंकि जॉब्स ज्यादा लोगों के लिए खुल गई हैं, तो इसी तरह ये जो लैंडस्केप है ये बहुत ज्यादा कंपेरेटिव हो गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको जान ज्यादा मारनी है टू गेन द सेम पोजीशन that a lot of other people from multiple different countries are fighting for. ठीक है, इसका मतलब है कि you really have to pick up your game and you really have to become the best developer that you can be. ठीक है, तो जब आप क्या कहते हैं, जब आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मसले मसाइल क्या होते हैं। ठीक है, कि जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, वो छोटे लेस पेइंग जॉब्स के लिए सेटल क्यों हो जाते हैं फिर एट द एंड ऑफ द डे। सबसे बड़ी रीजन ये है कि उनकी जो प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल्स होती है, ठीक है, जिसे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कहते हैं, वो इंटेंसली वीक होती हैं। ठीक है, अब जब एक टेक कंपनी एक इंजीनियर हायर करती है, वो एक ऐसा बंदा ढूंढ रही होती है जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। ठीक है, और वो ऐसा कोड लिख सके, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर सके जो टाइम ऑप्टिमाइज्ड हो, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड हो, और वो सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी सोच रहा हो। इसका मतलब ये है कि हम लोग एक प्रॉब्लम को सिर्फ एक पहलू से नहीं, मल्टीपल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचें। ठीक है, और सोचें कि यार मेरा जो कोड लिखा हुआ है ये कितना एफिशिएंट है, क्या ये इन एज केसेस के लिए काम करेगा या नहीं करेगा। तो जो डेवलपर्स इन पाकिस्तान है उनके जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा मसला होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथमिक थिंकिंग करने में। ठीक है, उनके लिए क्रिटिकल थिंकिंग करने की एबिलिटी क्योंकि उनके अंदर इंस्टिल नहीं की जाती, इसलिए जब वो एक टेक्निकल इंटरव्यू पे जाते हैं एट अ बिगर फर्म अब्रॉड, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि वो अपने जो कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियरली कम्युनिकेट कर सकें। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक इंटरव्यू निकाला हुआ है जो कि है फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट ब्लूमबर्ग। अब बेसिकली बीटीएस का ये क्वेश्चन है विच इज बाइनरी ट्री सर्च। ठीक है, और मैं आपके साथ ये लिंक वगैरह भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये एक इंटरव्यू आपको एक इनसाइट देता है कि बड़ी कंपनीज कैसे हायर करती हैं। दे नॉट लुकिंग फॉर कि यार आपके पास ये क्वेश्चन है तो सॉल्व कर दो, नहीं, दे रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आप सॉल्व कैसे करते हो, आपका पीछे थॉट प्रोसेस कैसे है, क्या आपने इस केस के बारे में सोचा,
क्या आपने इस केस के बारे में सोचा? क्या आपने ये चीज इन कंसिडरेशन की? तो all these aspects taken together will decide whether or not they're going to accept you into the company or not, right? तो आई वुड हाईली रेकमेंड यू गाइस कि आप लोग इस तरह के कोडिंग इंटरव्यूज को जरूर देखें, ताकि आप अपना जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको आप बेहतर तरीके से इंक्रीज कर सकें। दूसरी मेन वजह कि डेवलपर्स क्यों नहीं हाई पेइंग जॉब ले पाते, वो है कि उनके पास पोर्टफोलियो नहीं होता। ठीक है, अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिकली यू आर लूजिंग अबाउट 30 to 35% ऑफ एक्स्ट्रा मनी दैट यू कुड हैव अर्नड। ठीक है, क्योंकि एवरी एम्प्लॉयर एक्चुअली, a lot of the employers at this stage, they don't really care about what your degree is. They don't really care about कि आप MIT से पढ़ें या आप हार्वर्ड से पढ़ें या आप UMT से पढ़ें, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि क्या आपके पास स्किल है। और उनको कैसे पता चलेगा कि आपके पास स्किल है? उनको पता चलेगा आपके पास स्किल है या नहीं है थ्रू द पोर्टफोलियो दैट यू हैव, थ्रू द वर्क दैट यू हैव डन। तो इसलिए a portfolio is an extremely important aspect of your developer arsenal, कि आपके पास आपका एक अच्छा सा डेवलपर पोर्टफोलियो हो जिसपे क्लियर कट चीजें, आपके जो प्रोजेक्ट्स और आपने जो एप्लीकेशंस बिल्ड की हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली बनी हो, ताकि एम्प्लॉयर जब आपका काम देखते हैं ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ट्रस्ट जनरेट होता है। ठीक है, और कोई भी एम्प्लॉयर के लिए रिस्क कम है अगर वो एक ऐसे डेवलपर को इंटरव्यू के लिए बुलाए या हायर करे जिसने ऑलरेडी काम किया हुआ है। अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है, तो ये एक बहुत नेगेटिव सिग्नल जाता है। ठीक है, और आपके जो चांसेस है ऑफ गेटिंग हायर्ड वो बहुत डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि whenever you're thinking about applying for jobs, make sure कि आपके पास जो आपका पोर्टफोलियो है वो अप टू डेट हो, ऑप्टिमाइज्ड हो। ठीक है, और उसमें आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह रेडी हो। ठीक है जी। उसके बाद अब सवाल एक और पैदा होता है कि और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से डेवलपर्स को लो पेइंग जॉब के लिए सेटल होना पड़ता है, और वो है ऑनलाइन प्रेजेंस कुछ नहीं होती। अब मजे की बात है कि एक टैबू है फॉर डेवलपर्स कि यार हम लोग एक बिल्डिंग के अंदर एक कंप्यूटर के आगे बैठ के सिर्फ काम शाम करते हैं। ठीक है, बट दैट इज एक्सट्रीमली बैड नाउ, क्योंकि अब लिंक्डइन आ गया है, अब गिटहब आ गया है, तो एम्प्लॉयर्स अपनी प्रॉपर रिसर्च करते हैं बिफोर दे हायर समवन। ठीक है, जिससे मुराद ये है बेसिकली कि सबसे पहली चीज जो एम्प्लॉयर करेगा वो ये करेगा कि वो जाके आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल्स वगैरह चेक करेगा। ठीक है, वो आपकी गिटहब के ऊपर जाएगा, आपकी गिटहब के ऊपर या आपकी गिटलैब की प्रोफाइल पे जाएगा और जाके चेक करेगा कि आप कितने एक्टिव हो, आपकी कितनी रिपोजिटरीज हैं, आपने पिछले 5-6 महीने के अंदर कितनी एक्टिविटी शो की है, कितना कोड लिखा है, कितनी रेपोज के अंदर कोड कमिट किया है। अगर आप इतने एक्टिव नहीं होगे ना, उससे ये होता है कि इट एक्चुअली गिव्स अ बैड सिग्नल कि आप इतने प्रोएक्टिव नहीं हो। ठीक है, और प्लीज आप ये भूलिएगा मत कि अगर आप एक रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आप अराउंड द वर्ल्ड डेवलपर्स के साथ compete कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप जिस आपका कंपटीशन अगर एक्टिव है गिटहब के ऊपर और आप नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली यूर लॉस्ट। ठीक है, तो आप जीत ही सकते हैं। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर की कम्युनिटी है जिसमें अगर किसी को कोई मसला है, ठीक है, दे हेल्प ईच अदर आउट। अगर आपको कोई सवाल का जवाब आता है और अगर आप डेवलपर कम्युनिटी की मदद करना चाहते हैं, ठीक है, आप स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आंसर्स के जवाब दे सकते हैं, ताकि आपके आंसर्स को देख के दूसरे लोग सीख सकें और आपके आंसर्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। जब कोई बंदा आपके आंसर को इंप्रूव करेगा, ऑटोमेटिकली आप ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो गिटहब और स्टैक ओवरफ्लो शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर लिस्ट, और उसको आप हमेशा ऑप्टिमाइज करते जाएं। ठीक है, तो जो आपकी लैक ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस है, ठीक है, वो भी एक बहुत मेजर रीजन होता है कि वाई पाकिस्तानी डेवलपर्स फेल टू compete फॉर हाई पेइंग जॉब्स अब्रॉड। ठीक हो गया? अच्छा, अब अब कुछ लोग टेक्निकल लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि यार क्योंकि हमारा सिर्फ काम कंप्यूटर के पीछे है, तो इसका मतलब है कि अगर तो हम लोग बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं ना जी, तो एम्प्लॉयर तो हमें कभी मना करेगा। बट इन टूडेज टाइम दैट इज नॉट द केस। अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर, तो एक प्री रेक्विजिट है, वो तो आपको होना ही होना है, बट दैट विल नॉट गारंटी यू जॉब। क्यों भला? क्योंकि आपने एक एनवायरनमेंट के अंदर काम करना है।
they're looking for someone who can work in a team, they're looking for someone जो उनके साथ 5-10 साल काम कर सके, उनके लिए इनोवेट कर सके, ठीक है, उनके लिए नई एप्लीकेशंस बिल्ड कर सके। तो हार्ड स्किल के अलावा आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल आता है, आपके पास लीडरशिप स्किल आता है, आप अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कैसे करते हो, आप अपने आइडियाज को प्रेजेंट कैसे करते हो, आप एक नेटवर्क के ऊपर टीम ऑफ 5 to 10 पीपल के अंदर बैठ के आप कैसे काम करते हो, ठीक है। एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर डेवलपर्स जो कि उनके फ्यूचर लीडर्स बने, ठीक है। दे आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉर डेवलपर्स। अगर उन्हें डेवलपर्स ही हायर करने हैं तो वो किसी भी आम जिसको कोडिंग आती है उसको हायर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों ने जो जिस पे फोकस करना है वो है कि यार अपने सॉफ्ट स्किल्स को इंक्रीज करना है, ठीक है। आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। इसका तरीका ये होता है कि आप अपने अपने किसी पार्टनर के साथ या अपने किसी दोस्तों के साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ताकि आप कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते हैं कि आपने बोलना कैसे है, आपने प्रेजेंट कैसे करना है, आपने प्रोजेक्ट को लीड कैसे करना है। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मेरे ख्याल से a lot of the people don't really focus on this a lot, और वो है नेटवर्किंग का। याद रखिएगा कि एक बड़ा फेमस कोट है बाय ग्रांट कार्डोन विच मींस बेसिकली कि कॉन्टैक्ट्स मींस कॉन्ट्रैक्ट्स। वो ये मकसद है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो कनेक्शंस की जो वर्थ है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। दुनिया के अंदर मोस्ट ऑफ जो हायरिंग जो होती है वो कनेक्शंस के थ्रू होती है, ठीक है। कि अगर आपका कोई जानने वाला है गूगल, वो आपको रेफरल दे देगा। अब कोई बंदा कहता है मेरा कोई जानने वाला नहीं है गूगल के अंदर, तब आपके पास लिंक्डइन जैसी, गूगल डेवलपर ग्रुप्स जैसी जगह आती हैं जहां पे आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करते हो और इन बंदों के साथ नेटवर्किंग करते हो, इन बंदों को अपने नेटवर्क के अंदर लेकर आते हो, इन बंदों को अपना दोस्त बनाते हो, ठीक है। तो उसके साथ फिर ये होता है कि आपका नेटवर्क जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा आपके पास चांसेस है कि आप एक अच्छी कंपनी के अंदर जाके काम कर सकोगे। क्यों भला? क्योंकि आपका ऑलरेडी वहां पे कोई जानने वाला होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपके अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके दोस्त, आपके पीयर्स, ये आपके मेजर कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको फ्यूचर के अंदर जाके आपने यूटिलाइज करते हैं। हम पाकिस्तानी का मसला ये होता है कि हम लोग एक बंदे से दोस्त होते हैं, 2 साल के बाद हम भूल जाते हैं, हम लोग लोगों के साथ इन टच नहीं रहते। तो इन टच रहना बहुत जरूरी है, लोगों का जेन्युइनली हालचाल पूछना बहुत जरूरी है, उनके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करना, साथ मिलकर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क दैट इज डन अराउंड द वर्ल्ड इज डन थ्रू नेटवर्क। मैं अपना मेरे चांसेस ज्यादा है कि मैं अपना दोस्त हायर करूं या अपने दोस्त को कोई जानने वाला हायर करूं इंस्टेड के मैं बिल्कुल एक स्ट्रेंजर हायर करूं, ठीक है। तो इसलिए कि अगर आप किसी को जानते हैं या अगर आप किसी को नहीं जानते जो कि एक सिलिकॉन वैली कंपनी के अंदर काम कर रहा है या न्यूयॉर्क में काम कर रहा है या सिंगापुर के अंदर काम कर रहा है, तो आप उसको लिंक्डइन के थ्रू या डेवलपर ग्रुप्स के थ्रू उनको रीच आउट करें, उनसे सीखें, उनसे बातचीत करना स्टार्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक हो गया। अब अब सवाल ये पैदा होता है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है कि अच्छा, अब व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं सिलिकॉन वैली कैलिबर का, ठीक है, या की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकूं, ठीक है। सबसे पहली सबसे मेजर चीज है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। अपने आपके डेटा स्ट्रक्चर्स और आपके एल्गोरिथम्स बहुत ज्यादा पक्के होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम मैं पर्सनली 2 वेबसाइट्स रेकमेंड करूंगा। एक है हैकर रैंक और दूसरी है लीड कोड। हैकर रैंक और लीड कोड के अंदर बेशुमार क्वेश्चंस हैं, हजारों क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आप 6-7 महीने के अंदर लीड कोड या हैकर रैंक के ऊपर 200-300 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, एल्गोरिथमिक थिंकिंग के, और खुद प्रॉपर बैठ के सॉल्व करते हैं सीख के, ठीक है, आई कैन गारंटी यू यू आर रेडी टू एक्चुअली वर्क एट एनी बिगर कंपनी प्रोग्रामिंग के लिहाज से। आपको ये बहुत ज्यादा स्किल दे सकते हैं, ठीक है। आपके जब कॉन्सेप्ट्स पॉलिश हो गए हैं, ठीक है, आप क्वेश्चंस करें, ठीक है, आप क्वेश्चंस करें, आप अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करें, ठीक है, और उनको आप अप्लाई करें बाय थिंकिंग मल्टीपल डिफरेंट सिनेरियोस। और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं
मोस्ट ऑफ द टाइम एट बिगर कंपनीज, फॉर एग्जांपल ब्लूमबर्ग हैकर रैंक यूज करती है आपको टेस्ट देने के लिए। जो टेक्निकल आपका इंटरव्यू होता है वो हैकर रैंक के ऊपर होता है, ठीक है। तो अगर आपने हैकर रैंक को अच्छी तरह समझा हो, ऊपर क्वेश्चंस किए, तो आपको समझ आती है कि ऑलराइट, सो व्हाट इज काइंड ऑफ द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन दैट हैकर रैंक बेसिकली आस्क्स। तो लीड कोड और हैकर रैंक का फर्क फायदा ये होता है कि मोर एंड मोर कंपनीज आर नाउ यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आप सॉल्व करें तो आई कैन प्रीटी श्योर आप जो टेक्निकल इंटरव्यू होगा वो आराम से एस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अभी से अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये बहुत आसान है, ये आप अपने कॉलेज के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। आपको अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, उनको प्रॉपर्ली कंपाइल करना पड़ता है, ठीक है, और उनको फिर ऐड करना पड़ता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि एम्प्लॉयर्स विल ऑलवेज प्रेफर समवन who has a little bit of experience or who has done a little bit of work and they can show for it। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मेरे ख्याल से आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। और अब तो एक इतनी ज्यादा वेबसाइट्स आ चुकी हैं, जिमडो वेबसाइट है, ठीक है, विक्स वेबसाइट आ गई है, स्क्वायर स्पेस आ गई है, आपको HTML बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट्स वगैरह भी मिल सकती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह होस्ट कर सको, ठीक है। उसके बाद अपनी जो, जैसे मैंने कहा कि अपनी आप सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करो, ठीक है। कम्युनिकेशन एक्सरसाइजेस करें एक दूसरे के साथ, अंग्रेजी के अंदर एक दूसरे के साथ, उर्दू के अंदर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बात करें और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट एक दूसरे को समझाएं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि एक चीज, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने से आपको ज्यादा बेहतर आता है। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आपने टेस्ट करना हो कि आपका एक कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, आप किसी और को पढ़ाओ, ठीक है। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है, ठीक है। वो आपसे सवाल पूछेंगे, अगर आपके पास जवाब नहीं होगा आप उसका जवाब ढूंढोगे, आप उसको वापस आके बताओगे, असल में आप ही साथ साथ सीख रहे हो, ठीक है। तो अपने कम्युनिकेशन एक्सरसाइजेस करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा ये है कि अब क्योंकि हर चीज ऑनलाइन हो गई है, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन हैकाथॉन्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो हैकाथॉन जरूर अटेंड करो, क्योंकि हैकाथॉन के अंदर ये होता है कि आपके पास 3 दिन 4 दिन होते हैं, आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, ठीक है, आप अपनी रिमोट टीम बिल्ड करते हो, अपने उस रिमोट टीम के अंदर काम करते हो, ठीक है। और वो एक ओरिजिनल सेटिंग होती है, वर्क सेटिंग होती है, जिसपे आप परफॉर्म करते हो। और उसके साथ साथ आपको अपने लिए मेंटोर्स भी ढूंढने हैं, आपके आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स, आप अगर किसी जगह पे जाके इंटर्नशिप करते हो या आपका कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर जानने वाला है, यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दैम, यू नीड टू बी देयर काइंड ऑफ लाइक अ स्टूडेंट, ठीक है। कि आप उनसे इंसाइट्स लें, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, सॉफ्टवेयर बेहतर कैसे लिखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, आप इन सब से सीखते रहें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हर रोज करते रहें, ठीक है। लॉन्ग पीरियड के अंदर आपको बहुत ज्यादा इसका रिटर्न होगा, लेकिन कंसिस्टेंटली हर रोज की बेसिस पे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार मैं क्यों बनूं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे या आईटी कर रहे होंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन पाकिस्तान, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इवन एंड अब्रॉड। पाकिस्तान में भी, ठीक है, जो पे स्केल है एक फुल स्टैक डेवलपर का, वो भी अराउंड बेस सैलरी उसकी अराउंड 21 लाख रुपया साल का, ठीक है, विच गिवन विद पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, is still a lot of money compared to other industries that Pakistan is operating in। तो इसलिए इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी अ डेवलपर इन पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप कल्चर राइज हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इतने मसले मसाइल हैं जो आप अपने डेवलपमेंट के स्किल के साथ थ्रू द पावर ऑफ कोड आप चेंज कर सकते हैं। पॉवर्टी एलिविएशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, एजुकेशन है, ठीक है, एग्रीकल्चर है। इस सब चीज को आप थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आपको अच्छा कोड करना आता हो, ठीक है, और आपको अच्छी समझ हो अपने कस्टमर की, अपने टारगेट ऑडियंस की, ठीक है, तो ये सारे मसले आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कोड इतना ज्यादा, एक इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है जो कि बेसिकली एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको एम्पावर करना चाहिए कि यार ये ऐसा स्किल है जो कि दुनिया बदल सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखना। और
एक और चीज हमेशा याद रखनी है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो, अपने आप से पूछो कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बन रहे हो, व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड why you want to become a software engineer, what do you want to do with this skill। क्योंकि जब आपको पता लगेगा ना कि आप एक चीज क्यों कर रहे हो, आपके दिमाग के अंदर आपका गोल क्लियर होगा, ठीक है, आपका फोकस क्लियर होगा, और यू विल बी एबल टू परफॉर्म एट अ मच फास्टर मच बेटर वे देन एनीवन एल्स जो कि जिसको क्लियर नहीं होगा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली really important tips and tricks that you need to keep in mind, and you really need to be focused around them। ये सबसे इंपॉर्टेंट की है, ये याद रखिए, ठीक है। अब इतनी ज्यादा चीजें हैं, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, एल्गोरिथम्स है, आपने पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्ड करनी है, अपने सोशल स्किल्स बेहतर करने हैं, आपने पाकिस्तान के अंदर कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, अब्रॉड कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, ठीक है। अब इतना ज्यादा चीजें हैं, ये हम कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। इसके लिए लाइक आई सेड, आपको डिसिप्लिन, फोकस, एक प्रॉपर आपको प्रोग्राम चाहिए होता है, ठीक है, जिसको आप फॉलो करें, और जिसको आप इंटेंसली इस पे आप काम करें, और आपको एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मिले। क्योंकि हम इस चीज से गुजर चुके हैं, हमने कहा कि यार दिस इज एक्चुअली अ लॉट हार्डर देन इट साउंड्स, ठीक है, इट्स इजियर सेड देन डन। तो हमने कहा कि यार दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, दिस इज व्हाई आई एम हियर टॉकिंग टू यू टुडे, क्योंकि यही चीज हम लोग पाकिस्तानी डेवलपर्स के अंदर डालना चाहते हैं, ठीक है। हमारा पीछे पर्पस ही यही है कि जो चीज एक डेवलपर को ग्रेट बनाती है, ठीक है, वो हम पाकिस्तानी डेवलपर्स को हम लोग दें, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने, ठीक है, डेवनेशन क्रिएट किया, ठीक है। डेवनेशन उन डेवलपर्स के लिए है, ठीक है, जो सीखना चाहते हैं, बेहतर डेवलपर्स बनना चाहते हैं, एंड दे रियली वांट टू बिकम द बेस्ट डेवलपर्स इन इन पाकिस्तान। और जो हमारा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली प्रोग्राम है टेक्निकल एक्सेलरेशन का, ठीक है, कि इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और यू आर बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और यू हैव लिटिल बिट ऑफ कोडिंग स्किल्स, जो हमारा फोकस प्रोग्राम है वो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, सॉफ्ट स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, ये सारा कुछ बना के आपको एक इंडस्ट्री रेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है, ठीक है। जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे मैंने मेंशन किया कि आपको मैंने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए जो कि एक ग्रेट डेवलपर को डिफाइन करते हैं, तो हम लोगों ने जो अपना प्रोग्राम है उसको डिजाइन भी 4 मॉड्यूल्स के अंदर किया हुआ है। हमारा पहला मॉड्यूल है जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग HTML CSS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जावा और कुछ समझाते हैं कि असल में आपने सोचना कैसे है वेब के बारे में, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू गिट, कि गिट को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि आप जब एक रिमोट टीम के अंदर काम कर रहे हैं हर चीज गिट के ऊपर हो रही होती है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट आती है, पाइथन आती है, और रिएक्ट जेएस आती है। अब ये जो टेक्नोलॉजीज मिला के आपके पास एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का स्किल आपके पास आता है, जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी इन डिमांड है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास है, ठीक है। दूसरा हम फोकस करते हैं प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने पे, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स, आहिस्ता आहिस्ता दे आर इम्प्रूविंग, दे आर बिल्डिंग बिगर बिगर प्रोजेक्ट्स। उन प्रोजेक्ट बिल्डिंग से ये फर्क पड़ता है कि उन्हें समझ आती है कि यार अच्छा, ये चीज जो हम लोग सीख रहे हैं हमारा स्किल असल में ये ऐसे ट्रांसलेट होता है, तो वो एम्पावर फील करते हैं। और जैसे जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे जैसे दे प्रोग्रेस थ्रू द प्रोग्राम, दे स्टार्ट बिल्डिंग देयर फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स एंड दे स्टार्ट यूजिंग देयर स्किल्स टू अर्न मनी एंड कम्पीट अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। हमारा मकसद है कि जो हमारे डेवलपर्स हों वो इतने सक्सेसफुल हों कि वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कम्पीट कर सकें। जो तीसरा मॉड्यूल होता है वो करियर डेवलपमेंट के अंदर होता है, जिसपे आपके पास ऑनलाइन प्रोफाइल्स होगी, जो आपके पास सोशल मीडिया हो गया, आपके जो पोर्टफोलियोज हो गए, वो आपने कैसे बिल्ड करने हैं, वो हम लोग इंश्योर करते हैं कि वी ब्रिंग अराउंड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, ठीक है, और हम उनको उनके जो स्किल सेट है उनको यूटिलाइज करें, ठीक है, ताकि हमारे बच्चे इंप्रूव कर सकें। और लास्टली हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एनवीडिया के अंदर काम किया, हमारे बहुत से जो दोस्त हैं वो फेसबुक गूगल के अंदर काम करते हैं, ठीक है, कतर एयरवेज के अंदर काम करते हैं, तो वी आर ब्रिंगिंग इन दीज एक्सपर्ट्स टू कम टॉक टू आवर डेवलपर्स, और उनको टिप्स एंड ट्रिक्स दें, उनको एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और उनका हौसला अफजाई करें कि उन्होंने कैसे बेहतर डेवलपर बनना है, ठीक है। तो ये 4 हमारे मॉड्यूल्स हैं हमारे प्रोग्राम के। अब जो हमारे प्रोग्राम के अंदर जैसे मैंने मेंशन किया कि 4 महीने का ये प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग टेक एक्सेलरेटर कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग स्किल्स के ऊपर जैसे मैंने मेंशन किया, वेब डेवलपमेंट के फंडामेंटल्स होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है विद जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट, और बैक एंड सिखाया जाता है विद पाइथन एंड जेंगो।
याद रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट इस वक्त जावास्क्रिप्ट और पाइथन दुनिया की सबसे मोस्ट इन डिमांड और मोस्ट फेमस लैंग्वेजेस है। तो अगर आपको ये दोनों आती हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स जो होंगे, ठीक है, वो आपको हायर कर सकेंगे, ठीक है, एट अ हायर पे, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, इनकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस बिल्ड हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड हमारे पास आता है कि यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, और हमारा जो प्रोग्राम है वो डिजाइन ही इसी बेसिस के ऊपर है, क्योंकि हमने ये पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है कि यू ऑलवेज लर्न बाय बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। तो जो हम लोग, हमारा कोर फोकस ही ऑन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होता है फ्रॉम डे वन, ठीक है। तो हमारे जो फ्यूचर के अंदर जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अभी क्विज एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, दे बिल्ड वेबसाइट्स फॉर अ रेस्टोरेंट, दे बिल्ड वेबसाइट फॉर लाइक उबर ईट्स। अब वो आगे जैसे जैसे वो एडवांस करते जा रहे हैं, दे स्टार्ट बिल्डिंग क्लोन्स फॉर नेटफ्लिक्स का क्लोन कैसे बनाना है, हमने उबर का क्लोन कैसे बनाना है, ठीक है, हमने फेसबुक का क्लोन, सोशल मीडिया का क्लोन कैसे बनाना है, ताकि समझे कि पीछे कोर टेक्नोलॉजीज क्या यूज हो रही है, ताकि जब आप रियल लाइफ के अंदर आए, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट इनोवेटिंग अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। और तीसरे महीने, चौथे महीने के अंदर जाके दे स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग, क्योंकि उनके पास HTML, CSS, पाइथन और जावास्क्रिप्ट का स्किल होता है, एंड दैट इज द स्किल दैट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर। आपके पास अगर ये स्किल बहुत अच्छा है, आप आराम से फ्रीलांसिंग करके आप 1.5-2 लाख रुपया पर मंथ आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गोल है। उसके बाद, क्योंकि जो हमारी टीम है, जैसे मैंने मेंशन किया कि वी हैव एक्चुअली गैदर्ड people from Facebook, from Google, from PwC, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जैसे जैसे हमारे बच्चे सीखते जाएं, हम इनको लिंक करवाते जाएं विद दीज एक्सपर्ट्स, इनको बुलाएं, इनको लिंक करवाएं, ताकि ये लोग आके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनके साथ शेयर करें कि आपने कैसे एक बेहतर डेवलपर बनना है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे हम लोग फोकस करते हैं, और मैंने पाकिस्तान में बहुत से प्रोग्राम्स देखे, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज की कमी है, पता नहीं क्यों है, लेकिन हमें ये नजर आई और हम लोग चाहते हैं कि ये सॉल्व हो, क्योंकि बहुत से बच्चे चाहते हैं कि दे वांट, यू गाइस वांट टू बिकम गुड डेवलपर्स, यू वांट टू अर्न मोर मनी, यू गाइस वांट टू बिकम मोर सक्सेसफुल, एंड दिस इज हाउ यू एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल, ठीक है। और आखिरी चीज ये है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर भी और अब्रॉड भी, ठीक है, वी आर कंसिस्टेंटली पार्टनरिंग अप विद स्टार्टअप्स एंड विद कंपनीज, ताकि जो हमारे जो डेवलपर्स हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम इतना फोकस्ड है, और ये कंपनीज ये चीज ढूंढ रही है, क्योंकि ये बना ही एम्प्लॉयर को मद्देनजर रखते हुए, डिमांड को मद्देनजर रखते हुए, तो इसलिए हम लोग पार्टनर्स कर रहे हैं कंपनीज लाइक एयरलिफ्ट, विद PwC, विद रिटेलो, ताकि जैसे हमारे जो डेवलपर्स हैं वो ग्रेजुएट हों, ऑटोमेटिक उनकी जॉब्स वगैरह इन टॉप कंपनीज के अंदर लग जाए राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। और अब्रॉड हो या पाकिस्तान के अंदर हो, वी वांट आवर डेवलपर्स टू अर्न द मैक्सिमम, द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट एनी डेवलपर कैन अर्न इन पाकिस्तान। और हम लोगों ने सोचा, क्योंकि पाकिस्तानी के अंदर हमारे पास लाहौर, इस्लामाबाद हमारे Tier 1 सिटीज हैं, लेकिन हमारी Tier 2, Tier 3 सिटीज भी हैं, और हम चाहते हैं कि वहां पे भी जो टेक्निकल टैलेंट छुपा हुआ है, हम उसको भी निकालें, ठीक है। इसलिए हमने जो अपना पेमेंट प्लान रखा हुआ है, वो हमने बड़ा यूनिक रखा हुआ है। हमारे पास 2 मेन पेमेंट प्लान हैं, जो मेरे ख्याल से आपको पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलेंगे। वो एक तो इंस्टॉलमेंट का है, ठीक है, कि आपके पास अगर पीछे पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट पे करें, गुड टू। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, तो क्या अब आप अच्छा डेवलपर नहीं बन सकते, ठीक है। और बहुत से लोगों को ये चीज रोकती है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि यार हम लोग क्या करेंगे, स्टडी नाउ पे लेटर प्रोग्राम लेकर आएंगे, जिसपे अगर आपके पास पीछे फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, इट्स परफेक्टली ओके, डोंट वरी अबाउट इट, आप आओ, ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम वगैरह अटेंड करो, जब हम आपको जॉब लगवा के देंगे, और आप सिर्फ तब पैसे पे करना जब आपको जॉब लग जाए। तो इससे ये हुआ कि अब सारा प्रेशर हमारे ऊपर है, हमारे बच्चे सक्सेसफुल होंगे, हम सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस है प्रोग्राम के अंदर कि जो हम लोग स्किल सिखा रहे हैं, जो हम लोग बच्चे ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, दे आर गोइंग टू बी द बेस्ट डेवलपर्स इन पाकिस्तान। एंड इट्स ट्रू, राइट नाउ इफ यू गो टॉक टू आवर किड्स, जो कि अभी अपने 2 महीने के अंदर है, उनका स्किल एक नॉर्मल एवरेज डेवलपर के स्किल से बहुत ऊपर है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने जो प्राइसिंग मॉडल रखा हुआ है, वो हम लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान की इलीट को सोच के नहीं रखा हुआ, लेकिन पाकिस्तान के जो मेन हमारा तबका है, ठीक है, उसको सोचते हुए रखा है कि कोई भी इस चीज प्रोग्राम को अफोर्ड कर सके। तो हमारे पास ये पेमेंट ऑप्शन है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, ठीक है, या तो आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर लो,
या तो आप मैगी नूडल्स बना लो, ठीक है। हम लोगों ने इतना सिंपल रखा हुआ है कि 2 मिनट के अंदर आप दोनों चीजें कर सकते हो ठीक है। हमारी जो वेबसाइट है वो है thedevnation.com। हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। कोई हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीजें नहीं डाली, कोई मुश्किल काम नहीं डाला। आपके पास सिर्फ आप ऑनलाइन जाते हो, आप फॉर्म फिल करते हो, आपके पास सेकंड स्टेप के अंदर आप अपनी रीजनिंग बयान करते हो कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो, ठीक है, आपको क्या चीज मोटिवेट करती है। और तीसरी चीज के अंदर या तो आपका इंटरव्यू होता है या तो आपको प्री डेव कोर्स के अंदर इनवाइट किया जाता है और आपकी परफॉर्मेंस के तहत के ऊपर आपको एनरोल कर दिया जाता है, ठीक है। तो इफ यू गाइस वांट टू बिकम रियली रियली गुड डेवलपर्स, ठीक है, और आप इंटरेस्टेड हैं अपने स्किल सेट को, अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, ठीक है, देन यू नीड टू हेड ऑन टू आवर वेबसाइट राइट नाउ एंड यू नीड टू अप्लाई, ठीक है। लास्टली आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू बी स्पीकिंग विद यू ऑल, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है। मुझे पता है जो इस वक्त सारे मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं वो इंतहाई, जो मुझे सुन रहे हैं वो इंतहाई टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है। दे वांट टू बिकम रियली गुड डेवलपर्स। तो हम लोग आप लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड वी रियली वांट पाकिस्तानी डेवलपर्स टू बी रियली सक्सेसफुल। और हम लोग वाकई चाहते हैं कि जो यूएमटी के ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, वो आगे जाके पाकिस्तान के टॉप डेवलपर्स बने, ठीक है, और बाकी जाके पाकिस्तानी इकोसिस्टम के अंदर इनोवेट करें और बाहर की कंपनियों के अंदर जाके काम करें और वैल्यू ऐड करें। तो आई थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत आप लोगों का शुक्रिया। अगर अब आई विल ओपन माई सेल्फ फॉर क्वेश्चंस। अगर किसी के पास कोई भी सवाल है, कोई भी किसी तरह की एक कोई इशू है, कोई मसले मसाइल हैं, तो प्लीज आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। कुछ क्वेश्चंस बेसिकली मुझसे भी स्टूडेंट्स करते हैं, जो कुछ सोसाइटी के मेंबर्स हैं और कुछ क्लब्स के मेंबर्स हैं, कि जो इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशंस होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की एजोर की हो गई सर्टिफिकेशंस, उसके अलावा उनके एसक्यूएल में सर्टिफिकेशंस हो गए, ओरेकल की सर्टिफिकेशंस हो गई, क्या ये जॉब में स्किल्स के साथ मैटर करती हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये पाकिस्तानी फैसिनेशन है कि जी आपके पास बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशंस होंगी तो आपको जॉब मिल जाएगी। अब जो एजयोर की सर्टिफिकेशन है उसके लिए समझने की बात ये है कि वो बड़ी स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। असल में आपने करना क्या है, ठीक है। एजयोर आप तब पढ़ते हो, ठीक है, जब आपने समझना हो डेवऑप्स कैसे काम करता है या आपने उनकी माइक्रो सर्विसेज को समझना हो। और ये सर्टिफिकेशन लेना बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल से जैसे जैसे आपका करियर प्रोग्रेस करता है, आपको ये सर्टिफिकेशंस पकड़ते रहना चाहिए, आपको अपना स्किल सेट इंप्रूव करते रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर एक डेवलपर फोकस्ड है, ठीक है, और वो ये सर्टिफिकेशंस ले रहा है तो ये अच्छी बात है, उसको लेनी चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर अगर आपके पास स्किल ही नहीं है, आप ये टेस्ट वगैरह पास ही नहीं कर सकोगे। अगर आप ये पास कर भी लेते हो, गारंटी नहीं है कि आपको काम आएगा। ये भी फिर आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करके, ठीक है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली बात फिर वही 4-5 जो मैंने कोर स्किल्स की बात की है, बात एट द एंड ऑफ द डे उसी पे आ जाती है। आप एक टेस्ट तो पास कर लोगे, ठीक है, आप एक सर्टिफिकेशन तो ले लोगे, क्या लेकिन क्या उससे आपको काम आ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। गारंटी नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि लुकिंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब एनरोल हो रहे हैं सी एस आई टी की डिग्रीज में, तो उनको स्टार्टिंग से ही कौन सी लैंग्वेज जो है वहाँ से बिगिन करना चाहिए और कौन सी लैंग्वेज को जो है वो फोकस करना चाहिए जिस पर वो अपने प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यूसली कर सके? अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, और इसको मैं बड़े डिफरेंट तरीके से सीखता हूँ। और ये मैंने चीज अपने को फाउंडर से सीखी है कि यार जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सिर्फ एक लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज जो मर्जी हो, मैटर नहीं करना चाहिए। आप फोकस करें अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर और एल्गोरिथम्स के ऊपर और आप सोचते कैसे हैं उस चीज के ऊपर, ठीक है। एज लॉन्ग एज आप सूडो कोड लिख सकते हैं एक चीज का, ठीक है, तो उसको ट्रांसलेट करना कोड के ऊपर कोई इतनी बड़ी बात, कोई इतनी महारत की बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन एक एफिशिएंट सोल्यूशन क्रिएट करना वो एक बड़ी बात है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आप फोकस करें। आपके पास पाइथन है, आपके पास जावास्क्रिप्ट है, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन के लिए फ्लटर आ रही है, गूगल की जो है, ठीक है। आप ये सारी लैंग्वेजेस बड़े आराम से सीख सकते हैं। लेकिन आप तब तक अच्छे डेवलपर नहीं बनेंगे जब तक आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथमिक थिंकिंग का स्किल ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सोल्यूशन फॉर्म ही नहीं कर सकते तो लैंग्वेज जो मर्जी हो तो टूल है टू कन्वर्ट योर सूडो कोड
into a working sort of piece of code. ठीक है, तो मेरी सजेशन हमेशा डेवलपर्स को ये होती है कि यार फोकस ऑन योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. ठीक है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको बेहतर करो, और उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी टॉप की चल रही है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, आप उससे स्टार्ट करो और उनको बेहतर करते रहो. यस सर, थैंक यू। अगर किसी का क्वेश्चन है मजीद तो आप काइंडली बता दें, हैंड रेज कर दें, मैं आपको। आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सर रहील फॉर योर टाइम, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी. थैंक यू सो इंशाल्लाह मच. हम आपके साथ इन फ्यूचर भी कोलैबोरेट करने की इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि आपके जो आपका गोल है, जो हमारे मोटिवेशन है, वो इसी तरह जो है वो आगे बढ़ते रहें। हम आपके साथ कोलैबोरेट भी इंशाल्लाह करेंगे, हम मज़ीद वेबिनार सेशंस और ट्रेनिंग सेशंस के लिए भी। और इसके अलावा जाते जाते मैं ऑफिस ऑफ पार्टिसिपेंट अफेयर्स की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, तमाम जो अटेंडीज़ हैं उनकी तरफ से, यूएमटी की तरफ, पूरी यूएमटी फैमिली की तरफ से, एंड पर्सनली आई थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो. थैंक यू सर। नहीं, एब्सोल्युटली, इट्स माय प्लेजर. एनीथिंग दैट आई कैन एक्चुअली गिव बैक टू माय कम्युनिटी, मुझे उससे बड़ी खुशी मिलती है. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग. थैंक यू सर। थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज.